Okay, welcome students. So today I'm starting your first unit of paper 6504, that is apiculture, and that is unit 1 is apiculture. Just 1 second. Apiculture. Apiculture refers to the rearing of honey bee to gain honey and other byproducts. The main aim to achieve honey for commercial point of view. And this human is so on what you can say that human has always domesticated animals for his own use. So here he also actually he started rearing honeybee to produce honey, and this is not recently. Their honey, human is using honey since prehistoric time. If you imagine in our Vedas, Ayurveda, Charak Samhita, and any in many other religious literature also. Say for example, Unani system of medicine. Also, the honey has been discussed. So it's not a new thing. So we can say in the prehistoric time people are using honey, and it is also there in your religious books. So in Mahabharata, Ramayana, Veda, Puran, in all those literature, honey has been discussed. We are using honey. Honeybee actually produces honey for its own use. But as you know, like milk is not produced for us. But human is so greedy for its nourishment, he takes milk from other animal. Or is the only human being. इंसान ही ऐसा एनिमल है कि जो दूसरे एनिमल का मिल्क पीता है. इंसान ही ऐसा है जो एडल्ट होने के बाद भी मिल्क पीता है. Same way honey is not for us, but we actually, human has thought that it's so intuitive thing. It is so useful thing. Let's use it. And that's why we are also taking honey. So honey is what? तो अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है उनकी, उसमें वो सर्वाइव करने के लिए अपना हनी बनाते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, उनके सेल में से, उनके छत्ते में से निकाल के हम अपने यूज में ले लेते हैं. The honey, rearing of honey is new, something that started after the discovery of the artificial beehive by Longstreth. Longstreth in 1955 invented modern beehive. In that modern beehive, you have different cells on which you can actually have, there is a different, one cell for worker bee, one cell for drones, and this way entirely setup is, that is a part of our topic that we will discuss after some time in other lecture. So that is our entire topic, artificial beehive. So this man, Longstreth, has actually developed the beehive. तो यहाँ से लेके ये पूरा जर्नी स्टार्ट हो गया है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका. तो पहले क्या होता था, प्रीवियसली ऑल्सो पीपल वेर gathering honey, collecting honey, but the method was very crude method. पेड़ के ऊपर कहीं पे भी छत्ता है, whenever there is a honeycomb, people burn fire below that tree. So what happens? Honey bee ran away, and they used to took honey, extracted you, and the method is so crude that along with the honey mix, it get mixed with the what we call wax and certain larvae. So it is not so pure in sense of it is not only honey, but also some mixture of larvae and wax. But nowadays, due to ultra modern technique, we are getting pure honey. And economically, as enter in India,
now actually running very fast in economy of in this in by this industry. You can say just in 12 years our production of honey is double. नेशनल अगर मैं कुछ आपको नंबर बताऊं, दैट इज फ्रॉम द नेशनल बी बोर्ड. नेशनल बी बोर्ड हमारे देश का एक जो पूरा गवर्नमेंट सेक्स बॉडी है, नेशनल बी बोर्ड, उनके हिसाब से 1819 में हमारा टोटल हमारा जो हनी प्रोडक्शन था दैट इज अराउंड 1.5 लाख मेट्रिक टन. इंडिया has produced 1.5 lakh metric tons. You please keep your notebook and pen with you because you will not find this data in books. Okay, so in 1.5 lakh metric ton honey has been produced in 1819, year 1819, and we can say in just 12 years India has doubled, 200, not double but 200 times more production. Okay, the production is 200 times more in just 12 years. Today we have in India, we have, you can note down, today we have around 35 lakh 35 lakh bee colonies. More than 9,000, more than 9,000. We have more than 35 lakh bee colonies and and we have more than 9,000 registered. We have more than 9,000, 9,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया हुआ है इन एपियरी बिजनेस. गुजरात में मेरा ये खुद का अनुभव है, जहाँ पे मैंने कभी नहीं देखे थे वहां पे मैं एपियरी इंडस्ट्री देख रहा हूँ. अगर आप यहाँ से अहमदाबाद से यहाँ पे जा रहे हैं, महुड़ी वाले रोड पे जा रहे हैं, विसनगर जा रहे हैं, तो महुड़ी से पहले रास्ते में आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे एपियरी के. वहाँ पे गुजराती में लिखा है शुद्ध देसी मध ले लो मध, ऐसा बहुत सारे आपको बोर्ड मिलेंगे. तो ये सब नई लोकेशन जहाँ पे पहले बोर्ड ये सब नहीं दिखे थे. दैट मीन्स द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. And if the people who are not belonging to those field can make money, you people who have fundamental knowledge of biology can make so much money. And this, I'm giving the figure that from the National Bee Board per capita इंडिया में देखो कितना है. यहाँ पे उनका मैंने कल एक एस्टिमेट फिगर मैंने मेरे पुराने स्टूडेंट्स का बताया था कि वो कहता था कि एक सीजन में वो लोग 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं साइड बिजनेस के तौर पे. दूसरा यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास 100 बी कॉलोनीज हैं, इफ यू हैव ओनली 100 बीज कॉलोनी, अगर आपके खेतों में जगह है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं आपके पास, तो आप ये इंडस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विथ 100 बी कॉलोनीज एनुअल इनकम कैन रीच अप टू 3 to 5 लाख. अगर आपके पास 100 बी कॉलोनीज है देन इनकम कैन रीच अप टू दी 3 to 5 लाख. अब कंजप्शन देखिए, शायद हमारा जो कल्चर है वो सबसे पुराना है इसमें, और हम कहते हैं ना हमारा आयुर्वेद इतना प्राचीन है, सो एंशियंट टिल हम कहते हैं हमारा पूरा आयुर्वेदिक के नॉलेज को या हमारे योगा को विदेश वाले ले जाते हैं, अब्रॉड वाले ले जाते हैं, उसी को पेटेंट करवा लेते हैं. कई चीजों में अखबारों में आपने पढ़ा होगा. ऐसा ही है कि हमारा ये हनी इतना न्यूट्रिटिव है, फिर भी हमारा इसके प्रति जो हमारा टोटल हमारा जो कंजप्शन है वो कम है कंपेयर टू वर्ल्ड. से फॉर एग्जांपल इंडिया में पर कैपिटा हम कितना खाते हैं हनी पता है? पर कैपिटा 50 ग्राम हनी पर कैपिटा पर ईयर हम कितने खाते हैं? 50 ग्राम हनी, जिसके मुकाबले इन जर्मनी दे ईट 2 kg पर ईयर. सबसे ज्यादा पर कैपिटा हनी कंजप्शन पर ईयर जर्मनी में 2 kg. जापान में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा हनी कहाँ पे खाया जाता है? जापान में. जापान में पर कैपिटा 700 ग्राम हनी. हमारा जो है हनी प्रोडक्शन जैसे आज 2018-19 का डेटा बता है तो 1.05 लाख मैट्रिक टन है. आज इंडिया वो पोजीशन में है कि इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्टिंग हनी, मोर देन 50% हनी इज बीइंग एक्सपोर्टेड. हमारा जो हनी है, क्योंकि देखो हम भले ही कम खा रहे हैं लेकिन बाहर वाले ज्यादा खा रहे हैं एब्रोड में. तो आजकल आज भी कोरोना क्राइसिस में इसका कंजप्शन बढ़ गया है. ये हमारे सारे च्यवनप्राश है, जो भी आप अभी सर्दियों की सीजन में
ठंडी में हम च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं, उसका जो मेन रॉ मटेरियल क्या होता है, हनी होता है। उसमें बहुत सारा दूसरे आयुर्वेदिक आंवला या और भी दूसरी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, वो उसमें होती हैं। तो उसका मेन जो बेस होता है वो क्या होता है, हनी होता है। हनी के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए ये लोग इसका कल्चर करते हैं, इसका रियरिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके लिए इनकम का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। इसको पूरा बेसिक इसका फंडामेंटल जान लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, इंडस्ट्री में जाके थोड़ा बहुत अगर वेकेशन है तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर लीजिए, या किसी इंडस्ट्री में रुकिए 2-3 महीने वहां पे देखिए, कोई जान पहचान वाला है उससे मिलिए, यू कैन अर्न मनी। तो इसका जो हनी का अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी, आज भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको इंट्रोडक्शन एपीकल्चर का। तो मैन हैज प्री हिस्टोरिक, आपकी बुक के अनुसार मैन हैज स्टार्टेड रियरिंग यूजिंग हनी सिंस प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो हमारे चाइनीज ट्रैवलर आते थे या जिन्होंने पूरा नरेट किया हिस्ट्री, फहियान एंड वेंसन, FAHIYAN, फहियान एंड वेंसन, he also discussed the use of honey in Indian culture। हमें मधुमक्खियां, अगर आप इनका लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ें, इसमें टॉपिक्स आएगा, तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम इनसे सीख सकते हैं। दे आर आवर टीचर्स, हनी बीज आर आवर टीचर्स, बिकॉज दे आर सो हार्ड वर्किंग। कितना हार्ड वर्क करते हैं, कभी आराम से शांति से बैठे नहीं रहते, दे कॉन्स्टेंटली दे वर्क। व्हाट दे टीचर्स, दे टीचर्स वर्क एंड वर्क हार्ड, दे टीचर्स कोऑपरेशन। जैसे फुटबॉल की मैच में, हॉकी की मैच में आपको कोऑपरेट होता है, डिफेंडर डिफेंड करता है, अटैकर जो है स्ट्राइकर वो स्ट्राइक करता है, पासर्स जो होते हैं बीच के रेंज में वो पास करते हैं खिलाड़ी। एक ही बंदे से मैच नहीं जीता जा सकता। सेम वे यहाँ पे भी कोऑपरेशन है, सबका काम फिक्स है, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। जैसे आपके टीचर्स भी कितना कोऑपरेशन से काम करते हैं, ये पेपर मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन भी आपके होते हैं कि मार्कशीट में होते हैं 4 क्वेश्चन, तो एक प्रोफेसर एक क्वेश्चन लेता है, दूसरा क्वेश्चन लेता है। दैट्स कॉल्ड कोऑपरेशन। हर बंदा हर चीज कर सकता है, लेकिन वो कोऑपरेट है, क्योंकि एक सब करने जाएंगे तो बिगड़ेगा। ऐसे ही हनी भी क्या करती है, कोऑपरेट करती है। वर्कर्स हनी भी जो होती हैं उनका कुछ इंडोर हनी बीज होती है, आउटडोर हनी बीज होती है, सबका अपना अपना ड्यूटी होता है। एंड दे ऑल्सो वर्क इन कोऑपरेशन। So they teach us work, cooperation and work hard। एक एग्जांपल दूं मैं, कितना वो वर्क हार्ड करती है कि फॉर 1 pound ऑफ हनी, 1 pound हनी के लिए हनी को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, डबल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ ग्लोब। हमारी जो पृथ्वी है उसका अगर हम पूरा जो सर्कमफ्रेंस निकाले तो उसका 2 बार जितना अंतर होता है, उतना 1 pound हनी के लिए उनको क्रॉस करना पड़ता है। ये एस्टिमेट फिगर है। पहले भी लोगों ने किया था, लेकिन जो मेथोडोलॉजी थी वो बहुत ही क्रूड थी, बहुत ही क्रूअल थी, क्योंकि लार्वे मर जाते थे। एक बार छत्ता यूज हो गया, दूसरी बार उनको फिर से छत्ता बनाना पड़ता था। हनी बी का पूरा काम उनका जो डेवलप करने में जाता था, हनी बी का पूरा कॉम बनाने जाता था। लेकिन आजकल इनका जो है वो कैसा हो गया है, अब जो इनका काम है वो इजी हो चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल बी हाइव आ गया है। तो उनका जो एफर्ट है वो सिर्फ हनी बनाने में लग जाता है। तो वो पूरा जो फिर से बिल्ड करना, फिर से उनका पूरा छत्ता बनाना, उसके यहाँ पे हमने उनको आर्टिफिशियल रेडीमेड बी हाइव दे दिया है। अब उनको सिर्फ आपका हनी गैदर करके लाना, नेक्टर गैदर करके आना है, अपनी बॉडी से हनी में उसको कन्वर्ट करना है और उसको जो वहाँ पे स्टोर करना है। जैसे स्टोर हो गया, हम उनको साइड में निकाल देंगे, हम वो उनके कॉम सीट ले लेंगे, कॉम निकालेंगे और हमारा बिजनेस रन करेंगे। ग्रीडी, ह्यूमन बीइंग इज ग्रीडी। हम पूरा जो हमारा उनकी कुछ सेवा तो हम कर नहीं रहे, अब हमारे फायदे के लिए, हमारे मुनाफे के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे पैसों के लिए हम उनका यहाँ पे टोटली यूज कर रहे हैं एनिमल का। तो बी कीपिंग सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस दिखेंगे। डिस्कवरी कई बार, डिस्कवरी पे, नेशनल जियोग्राफी पे कई बार बी कीपिंग के प्रोग्राम आते हैं, उनको आपने देखा भी होगा, उनके अलग से कॉस्ट्यूम होते हैं, वो कैसे बीज को हैंडल करते हैं। कौन से आपको बी, इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी नेचर की हमें बी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, बिकॉज दे हैव ऑल बीज हैव देयर ओन नेचर। तो हम जैसे हम्बल नेचर वाली बीज है उनको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो ये सारे भी एक दूसरा टॉपिक आएगा, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन हनी बी। अब मैं मूव करता हूँ सबसे पहले इंटरेस्ट, मतलब कि द मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हनी के लिए। तो सबसे जो आपका टॉपिक का लास्ट सिलेबस में लास्ट टॉपिक है ये यूनिट का, हनी एंड बाय प्रोडक्ट्स, हनी एंड वैक्स। लेकिन मैं हनी को पहले ले लेता हूँ। तो ये कई बार शॉर्ट नोट में आता है एग्जाम में,
प्रॉपर यूजेस ऑफ हनी बहुत ही सिंपल है। आपने आपने कई बार आपकी ग्रुप्स होगा या ऐसी एक मैगजीन्स है या कहीं पे भी आपने हनी के बारे में बहुत सारा लिखा होगा। आपकी ट्यूसडे की जो जो एक्स्ट्रा पेजेस आते हैं न्यूज़पेपर के, उसमें भी इसके सारे प्रॉपर्टी आते रहते हैं। गूगल पे आप डालोगे तो बहुत जगहों पे बहुत सारे मेडिकल यूजेस आपको देखने मिलेंगे। तो वही आपको एग्जाम में डिस्कस करना है, थोड़ा मेनली हम उसकी ज्यादा लेंगे। तो आप प्रॉपर्टी देखें कि हनी बी में हनी है क्या। हनी, एक्चुअली हनी जो है वो क्या है, वर्कर भी क्या करती हैं, उनके खुद के न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग फ्लावर्स की नेचर में जाके मुलाकात लेती हैं। दे विजिट, दे ट्रैवल एंड दे एक्चुअली suck the pollen, they suck the nectar of the, they suck the nectar of the flower, they suck the nectar of the flower, then they actually mix that nectar with their saliva. They keep certain time that saliva with the saliva, and then certain enzymatic action with the saliva take place. Some sort of chemical changes take place in that what do you call nectar, and then it gets converted into the honey. Then this saliva is along with the nectar and saliva mixture is the mix your will be your honey that will actually vomit it out in the cell, and then it was condensed. उसका सब पानी का जो होता है फेनस भी उसको फैन करती है, उसका वाटर कंटेंट निकल देता है और then it gets converted into the honey. तो ये एक्चुअली टोटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी नहीं है, ऐसे देखा जाए तो उसका भी पूरा सलाइवरी सिक्रीशन है। लेकिन जैसे हमने मिल्क को, मिल्क एक्चुअली कहाँ से आता है, एनिमल में से आता है। तो जैसे मिल्क ने हमने को मिल्क में को जैसे हमने वेजिटेरियन डाइट में कंसिडर कर लिया है, वैसे ही वी आल्सो कंसीडर हनी एज अ वेजिटेरियन डाइट। लेकिन साइंटिफिकली जूलॉजिकल एस्पेक्ट से तो इसमें थोड़ा सिक्रीशन सलाइवा का है। कई बार ये प्रिपरेशन में कुछ बीज जो है उसके लार्वे भी क्रश हो जाते हैं। तो टोटली इसको क्या कंसिडर करना है वो अब आपको जानना है। लेकिन फिर भी आज की डेट में रिचुअल्स जो होती है, कहीं पे पूजा होती है, उसका प्रसाद होता है, तो उसका जो इसमें बुक्स में भी लिखा होता है कि जो चंदामृत जो प्रसाद आता है उसके अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हनी। तो हमने जैसे दूध को अपना लिया है, दही को अपना लिया है, कर्ड को अपना लिया है वेजिटेरियन डाइट में, वैसे ही हमने हनी को भी अपना लिया है। तो वो हनी है जो एक्चुअली टोटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं है, ओनली वो नेक्टर नहीं है, नेक्टर के साथ कुछ सलाइवा का सिक्रीशन भी है, लेकिन एनी हाउ वी हैव एक्सेप्टेड एज अ वेजिटेरियन डाइट। ओके, तो हनी का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो हनी में मेनली होता है डेक्सट्रोज और लेब्यूलोज। मैं इसका बता देता हूँ आपको हनी का कंटेंट क्या है। तो उसमें है वाटर, केमिकल कॉम्पोजिशन हनी में है वाटर, आप भी नोट करते हैं ना आपकी नोटबुक में, 17% फ्रुक्टोज, 38% फ्रुक्टोज, ग्लूकोज 31% ग्लूकोज, सुक्रोज 1.3%, शुगर 9%, टोटल एसिड 0.57%। मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं, एस जो होता है 0.17%, नाइट्रोजन कंटेंट है 0.04%, and negligible amount of vitamins and enzymes are also there। तो ये सारी चीजें इसके केमिकल कंपोजिशन में आएंगी। इन एडिशन टू दैट
We find honey sweet because it contains glucose and fructose, it contains sucrose. That's why we find it's very sweet in nature, sweet in taste. It contains both monosaccharide and disaccharide. it कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड दोनों आ जाएगा. सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है. हनी ऑल्सो कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन का प्रोटीन भी होता है एंड फ्री एमिनो एसिड. इट ऑल्सो हैज गॉट दी फ्री एमिनो एसिड. और उसमें दूसरे कौन से होते हैं, इन एडिशन टू, यू कैन नोट डाउन, इट ऑल्सो कंटेन साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, gluconic acid and hydrochloric acid and HCl and hydrochloric acid. मिनरल्स की बात करें तो it contains iron, copper, magnesium, manganese, sodium, potassium. Again I am repeating: copper, magnesium, manganese, sodium, potassium, calcium, silica, phosphorus, sodium, potassium, calcium, silica, phosphorus. So all these are there in honey. विटामिन्स की बात करें तो मेनली जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी भी, एस्कॉर्बिक एसिड. कौन कौन से विटामिन है उसमें, एस्कॉर्बिक एसिड, निएसिन, एस्कॉर्बिक एसिड, निएसिन, पेंटोथेनिक एसिड, riboflavin, and thiamine. Riboflavin and thiamine. उसमें जो एंजाइम्स है, इन्वर्टेज, एंड डायटेक. इन्वर्टेज और दूसरे भी एग्जाम्पल ये है एंजाइम डायटेज. ये दोनों एंजाइम का फंक्शन आप ढूंढ के रखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा इन्वर्टेज एंड डायटेज का. ठीक है, ये दोनों एंजाइम आप ढूंढ के रखना, इनका फंक्शन. तो ये सारे एंजाइम भी इसमें है. हनी का प्रॉपर्टी में देखिए, उसका ब्राउन से लेके कलर कौन सा होता है, येलो से लेके ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका 1.41. डार्क इन कलर होता है, एरोमेटिक है, कॉलॉइड होते हैं, पोलन होते हैं उसके अंदर थोड़े. तो उसका अगर हम बात करें तो आपका ग्रेन्युलाइजेशन, एक हनी का प्रॉपर्टी ग्रेन्युलाइजेशन हो जाना, ग्रेन्यूल्स बन जाना. एक्चुअली पहले क्या होता था, अगर आप कुछ टेम्पल्स होते थे जिसमें ये करते, टेम्पल्स होते थे या क्रूड मेथड जो कनेक्ट करते थे, वो पहले घर पे लोग आते थे हनी बेचने के लिए. तो उनका हनी जब हम लेते थे तो थोड़ा दिन, 2 महीने 3 महीने बाद क्या हो जाता था, पूरा जो आपका कांच का या शीशे का बॉटल है, वो बॉटल के अंदर पूरा ग्रेनुलाइज हो जाता था. तो हमें लगता था ये पूरा ग्रेनुलाइज हो गया, मतलब पूरा शक्कर जैसा जम गया है, यार ये हनी में गड़बड़ है. तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के हनी मार्केट में आ गए, उन्होंने ऐसे प्रोसेस चालू किए करना कि वो अभी क्रिस्टलाइज होता ही नहीं है. अब कोई भी, मैं नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अब कोई भी डीमार्ट से या कोई भी जगह से, मॉल में से हम हनी लाएंगे और कोई भी कंपनी का हनी होगा वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा. लेकिन अगर आपने क्रूड मेथड वाले का लिया है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. तो हम क्या कहते हैं, इसका डुप्लीकेट है, ये ऐसे ही हमें ये डुप्लीकेट है. लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हनी का क्रिस्टलाइज होना बहुत ही अच्छा फीचर है. इट्स अ क्वालिटी ऑफ प्योर हनी.
अभी एक गवर्नमेंट का ये भी एक है, उन्होंने देखा अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल था जिसमें बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के हनी में उन्होंने क्या पाया कि उसमें मिक्सिंग हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है। सारी कंपनियों के नाम थे उसमें वो आर्टिकल में, अगर आप गूगल पे वो देखना एडल्ट्रेशन हनी ऐसा करना तो आपको अभी मिलेगा। अभी लेटेस्ट का भी आर्टिकल आई थी, 1 महीने के अंदर की बात है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी एडल्ट्रेशन कर रही हैं इंडिया में। तो ग्रेनुलाइज होना, लेकिन वो बेचारा जो फेरी करता है आपके घर पे लेके आता है उसको क्या बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो इसका तो डुप्लीकेट है, लेकिन वो ग्रेनुलाइज होना एक अच्छी बात है। और बहुत क्यों उसका ग्रेनुलाइज होता है उसका भी आपको रीजन बताऊं। कहते हैं कि डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज का 10 पार्ट्स ऑफ डेक्सट्रोज कंबाइंस विद 1 पार्ट ऑफ वाटर। 10 पार्ट ऑफ डेक्सट्रोज कंबाइंस विद 1 पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड दैट गिव्स यू क्रिस्टलाइजेशन। उसके लिए जैसे ग्रेन्यूल्स जनरेट होते हैं एंड दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर हनी। और जो क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर पोलन है तो एयर बबल्स है, एयर बबल की वजह से क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा जल्दी होता है। थोड़ी देर आपने हनी को क्रिस्टलाइज हनी को छोड़ दिया तो उसमें थोड़ी देर बाद फर्मेंटेशन भी होना पॉसिबल है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी मेडिकल वैल्यू की। नाउ वी टॉक अबाउट दी हनी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी। लेट्स टॉक अबाउट दी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दी हनी। हनी का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसकी हम बात करें तो मैं आपको बुक बताता हूँ कि उसका थोड़ा फूड वैल्यू हम देख लें। हनी का फूड वैल्यू, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी, हनी का फूड वैल्यू। तो कहते हैं कि 200 ग्राम ऑफ हनी that means 200 gram of honey provides as much as nourishment like 11.5 लीटर मिल्क। मतलब इतना जितना ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, जितना न्यूट्रिशन आपको 11.5 11.5 मिली लीटर मिल्क में से मिलता है उतना ही नरिशमेंट आपको 200 ग्राम हनी में से मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध की पे हनी पीने लगो, ठीक है। तो कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये फिगर है। फिर दूसरा इसमें लिखा है it is 2 gram of honey is as what do you call can give you as nourishment as like of 1.6 kg of cream or meat। 330 ग्राम मीट जितना। 2.1 ये बुक की वैल्यूज है। सर थोड़ा कैमरा इस नहीं साइड कर दो ना, दिख नहीं रही वैल्यूज। दिख रही। सर वो 1.6 के बाद क्या लिखा वो दिख नहीं रहा। 1.6 केजी, तो उसके बाद केजी ऑफ सर। केजी क्रीम, 1.6 अच्छा। केजी क्रीम। और उसके ओके। नीचे है 330 33 ग्राम मीट। ओके सर। थोड़ा ज्यादा इज इक्वल टू, और दूसरा एक है वैल्यू 2.1 ग्राम honey, 2.1 gram honey provides you 67 kilocalorie of energy. 2.1 gram provides you 67 ECL, kilocalorie. इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जैसे हमने इसका प्रॉपर्टी बताया, इतने सारे आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन सी है। तो ऑल दिस विटामिन मिनरल्स एमिनो एसिड्स are gets readily easily get absorbed at our intestine and mixed with the blood.
honey can be taken by any person. It can be taken by a healthy person as well as skilled person. It can be taken at any season, any time, and any proportion. Any proportion मतलब any time and any season. And person of all age can take honey. दूसरे अगर आप देखें तो कैंडल्स बनाने में, केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने में, जैम बनाने में कई बार इसका यूज होता है. कई बार कुछ बीमारियों में मिल्की जाए तो हनी भी देते हैं एनर्जी के लिए जल्दी से. इवन बच्चा जन्म लेता है, पहले अब तो डॉक्टर अलाउ नहीं करते, लेकिन पहले तो सबसे पहले अगर बच्चा जन्म लेता था घरों में या हॉस्पिटलों में, तो अगर रिचुअल्स आप अपनी मम्मी को, दादी को पूछना, तो सबसे पहले उनकी आंटी होती थी या मौसी होती थी, वो सबसे पहले बच्चे को एक 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 रिचुअल होता था जिसमें अपनी उंगली से बच्चे के मुंह के अंदर सबसे पहले वो हनी डालते थे बॉडी में. एक रिचुअल थी. अब पता नहीं अभी है कि नहीं, अब तो नहीं है, अब तो डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये रिचुअल्स था. उसको बोलते थे गढ़ चट्टू करायो. सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराते थे बच्चों का, और वो था हनी, उसमें यूज होता था. तो उसका मेडिकल वैल्यू की बात करें, फूड वैल्यू तो हमें पता चल गया. अगर हम बात करें मेडिसिनल वैल्यू की, और उसकी अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, तो इसमें से और की न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने हेडिंग वही रखा है. Honey is full of energy. It has antibacterial property. It enhance appetite. भूख लगाता है. It is useful in relieving dryness of mouth. कुछ डिजीज होते हैं या रेडिएशन थेरापी लिया हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो चुकी है, तो माउथ ड्राइनेस हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यू कैन टेक हनी. It can be useful in the dryness of mouth and body. It provides you essential vitamins, essential amino acids for growth of body. It improves the metabolism. Honey improves your metabolism. It purifies your blood circulation में minerals है ना, तो वो आपका कुछ डिजीज है, बैक्टीरियल है क्या, ऐसा कुछ है, तो आयुर्वेद कहता है कि इट्स अ ब्लड प्योरीफायर. देन मेडिसिनल वैल्यू की बात करें हनी के, तो मेडिसिनल वैल्यू इसमें थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, कुछ चीज आप मेडिसिनल वैल्यू में भी डाल सकते हो. और तो मेडिसिनल वैल्यू की बात करें, honey is mildly laxative. It's a laxative. I think you know what is laxative. जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन इजीली पास ऑन होकर फिकल मटेरियल आराम से बॉडी में निकल जाए, दैट इज द लैक्सेटिव नेचर. पपैया एक लैक्सेटिव है, जैसे इसी तरह हनी भी लैक्सेटिव इन नेचर. कब्जियत ना थवा दे गुजराती में कहिए तो. एंटीसेप्टिक, सिडेटिव, नींद लाने वाला. जिसको रातों को नींद नहीं आती तो एक चम्मच हनी पी के सोया करे. सिडेटिव, and it's usually used in Ayurveda and Unani system of medicine. It is said that it's quite helpful in building up hemoglobin of blood and also used, मतलब hemoglobin का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जल्दी रिड्यूस कर देता है. It is also used against the cough, cold, fever. कफ कोल्ड फीवर में यूज होता है. ब्लड प्योरीफायर है. क्यूरेटिव फॉर अल्सर ऑफ टंग एंड एलिमेंट्री कैनाल. मुंह के चांदे पड़ जाएं तो उसमें भी आप अल्सर पे भी या बॉडी में कहीं पे भी अल्सर, तो आप ये लगा सकते हैं, हनी को आप पी भी सकते हैं. इवन आपने देखा होगा कि कई लोग तो वेट बॉडी का फैट रिड्यूस करने के लिए सुबह उठ के नींबू के पानी के साथ, गर्म पानी के साथ हनी, नींबू का पानी यूज करते हैं टू रिड्यूस द बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए.
नॉट बॉडी फैट, बॉडी फैट। कई बार हार्ट अटैक के बाद आयुर्वेदा में उसको दिया जाता है, इनडाइजेशन की कंप्लेंट में भी उसमें दिया जाता है। यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन में इसका बहुत यूज है। आंखों का भी, आंखों में भी आंखों की रोशनी के लिए बरकरार रखने के लिए, आंखों का कचरा निकालने के लिए भी इसका यूज होता है। अगर आंखों में कुछ कीचड़ या कुछ चला गया है, आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो घर जाके आप क्या करते हैं, एक छोटा प्योर हनी लेके एक ड्रॉप डालोगे तो बहुत सारे आंसू निकलेंगे और वो जो भी है कचरा वगैरह निकल जाता है। टाइफॉइड की बुक में, आपकी जो बुक है रेफरेंस बुक में लिखा है कि टाइफॉइड के जो जर्म्स हैं आर कील्ड बाय हनी विद इन 48 आवर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक में लिखा है, मतलब ये नहीं कि आप इस वैल्यू पे जाके आप डॉक्टर की दवा ना लें, ठीक है। ये सिर्फ जो किताब में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। 48 आवर्स में टाइफाइड के जर्म को किल कर रहा है। न्यूमोनिया को 4 दिन में न्यूमोनिया के जर्म को किल कर सकता है, और डिजेंट्री को ये 50 आवर्स में रिवर्ट कर सकता है। तो यही है। मैं मेनली अदर यूज में देखा जाए तो फूड में, मेडिसिन में कई में यूज होता है। बहुत सारे अलग अलग अदर भी यूज है। ब्रेड में, केक में, बिस्किट में यूज होता है। कई बार ये ब्रेड के प्रिजर्वेटिव क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ा देता है। पर नहीं, नहीं, वो नहीं आएगा, प्रिजर्वेटिव नहीं है। कई बार, सॉरी, कई बार ये अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी यूज होता है। पोल्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री में भी कुछ फूड्स बनाने के लिए वगैरह बनाने के लिए, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। In laboratory, sometimes honey is used to grow the stimulate the growth of plants, bacterial culture, inoculation of seeds, बायोटेक लेबोरेटरी में कई बार, है ना। और भी छोटे छोटे इसके यूज हैं। So you can have your own material. You can also refer some good website, and you can also add the list. लेकिन इतना तो एग्जाम में आना ही चाहिए जितना मैंने डिस्कस किया। So in today's lecture, what we have learned today, in today's lecture, we started with the history. We started its application. What are the application of apiculture? Why we are actually studying this? Because अगर इसका मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था आज के लेक्चर में कि आप कितना इकोनॉमिकल, पूरे इकोनॉमिक्स के वैल्यू भी दिए थे कि हम इंडिया वाले इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना फायदा है ये करने में। इससे हमने स्टार्ट किया था और फिर हम डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आ गए थे। हनी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखा, केमिकल कंपोनेंट देखा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की, इसका ग्रेविटी इतना है, इसका कलर ऐसा होता है, क्लाउडी होता है, ग्रेनुलाइज हो जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए और उसके बाद हमने हनी के मेडिसिनल और फूड वैल्यू वाले, मेनली फूड वैल्यू एंड मेडिसिनल वैल्यू डिस्कस किया। तो होप आपको ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे जाए तो आएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इन अ डाइट with a prescription of some Vaid or doctor. You also start according to age. You can take this nutritional thing in your diet, incorporate in your diet also. Hope you enjoyed the today's lecture. If you have any question, just let me stop the recording and you can ask me. Just one second.